rather than going into the basics of the DAF, key one should focus on their optional subject, graduation subject, prizes, medals, and scholarships, and then maybe their home state, and then graduation state or graduation district or home district. Rather than going into these things, I would encourage you to first make a list of the keywords of your DAF and send that to me on WhatsApp. So I will go through your DAF and I will add to that list of keywords if anything has been missed. Then Yes, sir. I will add to that and then I will send that to Raj Malhotra's IS Academy. They will develop a question bank for you. So depending on your profile, it can have 1,000 or even maybe more questions. So that way you can cover your DAF extensively. Okay. Yes, sir. Yes, Having sir. said that, for this session, I would encourage you to maybe carry the discussion forward and you can ask and we can discuss whatever may have been bothering you in the previous interview rather than me just telling you the basics of the DAF that you sort of already know. Sir, I wanted to ask for keywords from my DAP. Like basics, I have written already about the state, but some more issues. For example, in Rajasthan, I belong to Bikaner in Rajasthan. So this issue of new districts, they have been formed, 19 or so new districts. So what kind of questions around that can be asked? Is it a good idea, bad idea? I have to prepare like that, or some other way, sir? Just wanted to ask that. Yeah, definitely. Does having this new districts help? Should Rajasthan be Mhm. bifurcated? देखो, whenever there are places in your DAF, you need to prepare on the lines of society, geography, economy, polity, history, culture, current affairs. ये तो पता Yes, है sir. आपको, हाँ लास्ट ईयर जी. किया होगा, हम्म. है हम्म. ना? अब नए डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं तो इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, राइट? कि डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा कोई ये ऐसा नहीं होता कि गॉड गिवन बाउंड्री है या गॉड गिवन हम्म. कंसेप्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेचुरल कंसेप्ट भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट तो पॉलिटी का कंसेप्ट है कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे कैन डिसाइड कि हाउ इट वांट्स टू गवर्न द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो इज इट गुड फॉर डेवलपमेंट? कैन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बी अ नेगेटिव पॉइंट? क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट बने तो उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट मशीनरी बनेगा, तो इट इज हम्म. गोइंग टू इनकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज गोइंग टू इनकर सम कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। But Yes, then, sir. is it a good step, or how many districts would you have formed? Which other districts need to be formed? Should जैसे district bifurcate हुए वैसे should the state of Rajasthan be bifurcated, because east और west में काफी difference in administrations, in governance or Mm-hmm. in challenges. So that can be a topic of conversation, and for that you need to have an opinion ready. कि what is the criteria for forming a new district and what is the criteria for forming a new state? Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. And sir, my hobby is actually exploring the grievances of people residing in rural areas. So last time Satyavati ma'am was there, and they asked me very basic questions like, "Do you go and observe this?" So I said, "Yes, I visit the villages and then talk to people." So it was just like a normal conversation, as in they were asking, "What kind of problems do you see?" and have you taken any step to address the same? My interview just went on 2 lines. This was only one hobby, this one. And second was the leadership thing, which was team lead in sustainable housing study project in college. So only these two topics, whole 30 minutes, the board took, and the interview went well. But then this time also my DAF and all is everything same. So I don't know what other thing should I be doing to score even more than last time. देखो, ये जो आपने डाले हैं, एक्सप्लोरिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, कैन बी अ वेरी गुड टॉपिक ऑफ डिस्कशन एज लॉन्ग एज यू डिड समथिंग अबाउट इट। सिर्फ Yes, एक्सप्लोर sir. करके एकेडमिक स्टडी बना के आ गया, दैट डज नॉट साउंड वेरी गुड। मतलब इट शोज दैट Mm-hmm. यू हैव सिंपैथी, मे बी एम्पैथी, बट डेफिनेटली नॉट कंपैशन। बट Mm-hmm. इफ यू सी पीपल सफरिंग एंड इफ they have problems, then using your knowledge of civil services exam, of governance or administration, you could have helped them. So if you can tell case studies regarding what are the problems that you have seen on the ground, pehla, then how did you help them, that how did you work with the district administration, or how you use technology or anything else, you work with some local NGOs to help them, and then what are your learnings from that that you can bring to civil services? That would be an excellent discussion and that would fetch you the highest marks. सबसे पहली बात, देखो, अप्रोच ये इंटरव्यू में होता है कि मेंस वाले माइंडसेट के साथ नहीं जाना होता है कि क्वेश्चन पूछा आंसर दे दिया। सिर्फ अपना नॉलेज डिपिक्ट नहीं करना है, हाउ इज दैट नॉलेज
making you a relevant civil servant. How can you contribute to governance and administration positively? उस अप्रोच से अपना नॉलेज दिखाना कि हमने ये किया, ये सीखे, ये अप्लाई कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, दिस वुड बी माय सजेशन, अगर इफ यू आर आस्क्ड फॉर सजेशंस. Mm. So try to use your life instances as much as possible in your answers, and it seems that you did do that with the exploring grievances thing, but then Yes. try to make a value addition in the conversation as well. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैनल मेंबर्स को लगे हाँ ठीक है रोज 12 कैंडिडेट्स आते ही हैं, शी वॉज वन ऑफ द 12. मतलब यू शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट, दे शुड रिमेंबर यू टिल एटलीस्ट द इवनिंग कि हाँ दिस कैंडिडेट केम, शी टोल्ड दीज मेनी थिंग्स एंड इट वाज समथिंग न्यू दैट वी लर्न. अगर इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है तो दे विल रिवॉर्ड यू. अदरवाइज तो फिर मेंस वाले कैंडिडेट, एवरीबडी हैज क्लियर्ड मेंस. Yes, sir. Sir, another thing was that last year I mentioned sustainable housing research project in college. So, Satyavati ma'am took that research word in her mind and she asked me, "What new did you do?" So I said, "Ma'am, it was not new. It was based at college level, and I was hardly in second year. So it was not new. We read all the research papers and then we collated what we found the best." So ma'am very bluntly told, "I am not interested in listening if it's not new." So I cut that word and put now study project as in Study is still research. because we didn't make a prototype of it. That's why I put the word research. नहीं 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 नहीं. What you could have done, or what my suggestion here would be, कि even if you didn't make a prototype, it does not mean it cannot be research. ठीक है, अगर आपने कुछ you read some research papers, तो कुछ learnings would have been there. उसके बाद कुछ Mhm. brainstorming या introspection, या फिर कुछ पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कैन बी द सॉल्यूशन टू इट. इफ यू आर रीडिंग रिसर्च पेपर्स, ऑब्वियसली मेनी पीपल मस्ट हैव बीन गिविंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस, और solutions which are feasible in low resource setting or in certain settings where there are certain challenges. For example, earthquake resistance वाला issue, नहीं तो राजस्थान में water scarcity और extreme weather events वाला issue. तो if you are coming across these things, then you could have mentioned it as a new thing. कि as of now this is being what is being done in housing, and what else, this is the state of the art, और पीएम आवास हाउसेज ऐसे बन रहे हैं और अभी ये करा जा सकता है. वो बात समझ में आई? अगर आपने सीधा बोल दिया कि नया नहीं मैडम कुछ तो नया नहीं सीखे, वो तो ऐसे ही पढ़ के आ गए थे, तो दैट डज नॉट. वही ना मैंने बोला, जो मेंस में और इंटरव्यू में डिफरेंस है. बट ये वो पूछते क्या नया किया है. शी वाज आस्किंग व्हाट न्यू. सो I was blank at that. This was the very first thing which she asked me when she read out my DAF, and very first thing was this. And I was blank with no answer that it's not new. एज अ टीम लीड क्या करा आपने? 10 रिसर्च पेपर पढ़े, लोगों से 20 रिसर्च पेपर पकड़ पढ़वाए. नहीं इतना तो सर. नहीं होगा, और कुछ भी करा होगा, कंपाइल करा होगा, सजेशन दिए होंगे हाँ हाँ, पॉलिसी. कंपाइल किया है, खुद के डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं एंड वी मेड दैट थिंग. बट न्यू का मतलब मैम वाज एक्सपेक्टिंग न्यू कि हमने कुछ ट्राई एंड टेस्ट कर दिया है, हम किसी लैबोरेटरी में जाके उसका एक्सपेरिमेंट करके आ गए हो एंड हमने उसको पब्लिश कर दिया हो एज आर रिसर्च पेपर. वो न्यू मैम एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमने पेटेंट ही करवा लिया हो, पर ऐसा सब पॉसिबल नहीं था सर कॉलेज में. इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ऐसा नहीं कि. मतलब विदाउट फंडिंग सर. अच्छा. इट ठीक. वाज जस्ट अ टेक्निकल हॉबी क्लब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के उसमें हम करते थे. सो दिस टाइम आई चेंज्ड इट कंप्लीटली. वो स्टडी से स्टडी भी कर उसी दिया. दिन. अच्छा, स्टडी कर लिया, फिर स्टडी से क्या आउटकम आए वो भी तो बताते बनना चाहिए. और न्यू में आई पर्सनली फील दैट इट मे हैव बीन योर इंटरप्रिटेशन, मैम वाज एक्सपेक्टिंग अ पेटेंट और अ रिसर्च पब्लिकेशन और एन पैराडाइम ऑल्टरिंग पॉसिबल. थिंग. But if you had mentioned that we compiled a list of suggestions that can be incorporated into public policy, and we made a vision document regarding that or some sort of documentation regarding that, even then that would have worked, because that way you could have carried the conversation forward, in which you could have told कि ऐसा ये नया हो सकता है अभी, rather than you bluntly close the conversation कि कुछ नहीं है ऐसे ही है वो, तो वो अच्छा किसी को भी नहीं लगेगा. यस. And so my topic, my graduation topic is civil engineering. हम्म. So last time, though they didn't ask anything, but this time I should prepare the basics. मैंने last time भी किए थे, but then I'm very much confused this time because interviews are starting early this time.
So I should leave it to the last, this civil engineering, and focus on other areas, or keep it side by side and मोस्टली उसके करंट अफेयर्स ज्यादा फोकस करूँ, जैसे ब्रिज कोलैप्स एंड ऑल. दोनों। सिविल ओके. इंजीनियरिंग इज अ वेरी प्रैक्टिकल फील्ड, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट यू कैन ब्रिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विसेज, मेरे से पूछा था। हम्म. रीसेंट ब्रिज कोलैप्सेस पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, या रीसेंट इवेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग पे दोनों फोकस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो लोगों को चीजें पता होती है कि पुराने घर तो 1000 साल दे हम्म. दे सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, दे सर्वाइव डिजास्टर्स। नए घर क्यों उतना सर्वाइव नहीं करते हैं? तो इज इट अ लैप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? आर सिविल इंजीनियर्स बिकमिंग लेस एंड लेस टैलेंटेड नाउ? व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विस एजुकेशन, बताइए। तो उसके हम्म. बाद फिर मान लो आपके पास, इफ यू हैव टू ब्रिज अ रिवर 300 मीटर वाइड, what kind of bridge would you use? Would you use an RCC bridge or an arch bridge or a suspension bridge or a cable stayed bridge or a beam bridge? तो वो बताते बनना चाहिए। स्टील ब्रिज यूज करोगे, आरसीसी गर्डर यूज करोगे, क्या करोगे? मतलब स्टील गर्डर यूज करोगे या आरसीसी स्लैब हम्म. यूज करोगे, वो बताते बनना चाहिए आपको। तो वैसे ही फिर घर में डैम्पनेस हो जाती है, तो व्हाट वुड यू डू टू एड्रेस दैट? बिल्डिंग टेढ़ी सो हो घर जाती में क्या है? है, डैम्पनेस सीलन। ओके. ओके. ठीक है, तो व्हाट वुड यू डू टू एड्रेस दैट? उसके बाद बिल्डिंग्स टेढ़ी हो जाती हैं या फिर क्रैक्स आ जाते हैं बिल्डिंग्स में, तो व्हाट वुड यू डू टू एड्रेस? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने के लिए क्या करोगे? यूपीएससी बिल्डिंग को ग्रीन बनाने के लिए क्या करोगे? हम्म. ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें तो पता ही होना ही चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन एस्केप द स्टैटिक पार्ट। हम्म. वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फिर सीमेंट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, सीमेंट कैसे बनता हम्म. है। चांसेस आर लेस, पर वहां पे अगर कोई पैनल मेंबर बैठे होंगे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, या कुछ उनने काम करा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो यू नेवर नो, हो सकता है ऐसे कोई पहुंच जाए वहां पे। तो ओके सर. ये हम्म. सिविल इंजीनियरिंग जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली फील्ड है, काफी एंशियंट डिसिप्लिन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, कोर इंजीनियरिंग कहलाता है। तो प्रिपेयर तो स्टैटिक करना पड़ेगा। एंड अनलकी फॉर यू, कम कभी कभी सिविल इंजीनियरिंग से आर्किटेक्चर के क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग वगैरह है, तो वो कैसे करोगे? हम्म. व्हाट वुड बी द स्टेप्स फॉर अर्बन प्लानिंग? फिर सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? फिर लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे बनाओगे? वो तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो गया। हम्म. तो लो कॉस्ट हाउसिंग में तो आपको ये भी बताते बनना चाहिए कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं दैट वुड रिड्यूस द कॉस्ट, कि फ्लोरिंग किस हम्म. मटेरियल का कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वॉल्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं, फ्लोरिंग किस मटेरियल की कर सकते हैं, सीमेंट की जगह रिप्लेसमेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो। ये सब आपको बताते बनना चाहिए, अदरवाइज फिर उसमें यही जाएगा कि सिंसियर नहीं है। फिर रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम्म. ठीक है, रोल ऑफ सिविल यस सर. इंजीनियरिंग इन अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, अपना जो सिविल इंजीनियरिंग, इंसिडेंटली आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर, तो मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स भेज देता हूँ आपको। मेरे से ये पूछा था कि व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विसेज, 2 मिनट लंबा आंसर दिया था उसमें। इन लाइंस पे था कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों। हम्म. ठीक है, कि अपन वो तो कर ही सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, फिर यस. डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक एंड डिजास्टर. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, फिर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसा भी बोला। वो सब तो टेक्निकल चीजें आप बोलोगे ही, बट यू कैन हम्म. लिमिट योरसेल्फ टू दैट, अदरवाइज मैं पैनल मेंबर तो होता, तो मैं तो यही बोलता कि उसके लिए तो हमारे पास इंजीनियर्स पहले से ही हैं। इंजीनियर्स यू है. कैन ऑल्सो गो टू सिविल इंजीनियरिंग, यू कैन गो टू इंजीनियरिंग सर्विस, व्हाई आर यू कमिंग टू सिविल सर्विस? ठीक है, वहां पे काउंटर हो जाता है, मतलब यू मे नॉट हैव बीन इन अ पोजीशन टू आंसर देम। आई हैव सेंट माय नोट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टू यू, तो वो देख लेना। ठीक थैंक है, यू सर. यस सर. उसके बाद, हाँ, तो अगला ये है कि टेल द aspects of your personality that you developed based on civil engineering that would be relevant for civil service। ठीक है, और वो है जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फ्रुगैलिटी, सिंप्लिसिटी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, पंक्चुअलिटी। हम्म. ठीक है, वो जरूर देख लेना। मतलब ये हाउ दे अप्लाई इन सिविल इंजीनियरिंग एंड व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम दैट टू सिविल सर्विसेज, ये मैंने आंसर में दिया था अपने। तो दैट आई थिंक वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। वो मेंशन करोगे तो उससे, और फिर आई मेंशन द लाइफ इंस्टेंसेस एज वेल, जहाँ पे ये सब सीखा। वैसे ही फिर सिविल इंजीनियरिंग से दे कैन ऑल्सो गो इनटू पीपीपी, कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स अभी सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे हम्म. लेटली, व्हाट हैव बीन द चैलेंजेस। वी कैन ऑल्सो गो इनटू कि एज अ डिसिप्लिन सिविल जैसा प्रैक्टिस होता है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड पे, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, व्हाट इंप्रूवमेंट्स वुड यू वांट टू ब्रिंग। ठीक है, यस सर. व्हाट एल्स?
So badminton in sports also, and in prizes leadership prizes section also, both of them badminton. तो उसमें इज दैट अ प्रॉब्लम और डू यू वांट टू डिस्कस मतलब व्हाट यू वांट नहीं सर, टू। प्रॉब्लम नहीं, मतलब जस्ट टेलिंग दे, मतलब इसमें लास्ट टाइम सिंस दो ही टॉपिक पे पूछा था पांचों पैनल मेंबर्स ने, तो बैडमिंटन में भी कुछ नहीं हुआ, सिविल इंजीनियरिंग में भी कुछ नहीं हुआ, स्टेट में भी कुछ नहीं हुआ, नथिंग, सिविल जस्ट टू इंजीनियरिंग में पूछा टॉपिक्स। तो था मैडम ने, पहला क्वेश्चन ही तो सिविल इंजीनियरिंग का था। आप सर वो ऐसे, तो मतलब मेरे उसका था, सस्टेनेबल हाउसिंग वाला जो मैंने डाल दिया था। दैट इज वेरी मच सिविल इंजीनियरिंग। हाँ मतलब वैसे है, बट हाँ, दोस टू टॉपिक्स पर ही पूरा पैनल रहा था सर। ट्राई ये माइंडसेट के साथ जाना कि हमें पैनल मेंबर्स के साथ कॉन्वर्सेशन बनाना है। इट हाँ। इज नॉट एंटायरली अ फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू डेवलप अ कॉन्वर्सेशन विद देम। ऐसा नहीं कि वाइवा की तरह हो जाए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दे दिया फिर आप बैठे कि भैया पूछो तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है। हम्म। आपको उनसे बात करना है। माइंडसेट इसके साथ जाओ कि यूपीएससी इज गिविंग यू 30 मिनट्स, यू आर नॉट गिविंग 30 मिनट्स टू यूपीएससी कि चलो यस 30 मिनट का सर। टाइम आपको दिया, देखना है जो देख लो। ट्राई टू एसोसिएट योर ओन प्रोजेक्ट्स, योर ओन वर्क्स, योर ओन लाइफ इंस्टांसेस with the conversation as much as possible. I'm not saying कि बड़ा चढ़ा के बताना, I'm not saying कि हम्म। tell artificial stuff और bluff the port, but जितना था उसको जैसे डिपिक्ट कर सकते हो, whatever the positive outcomes from it was, talking specifically about that project of yours, उसमें काफी सारी learnings आपकी रही होंगी which got skipped, which you could have mentioned। यस सर। ठीक है। सर दिस मच आई वांटेड टू आस्क। ठीक है, तो बैडमिंटन जो आपका आपने हम्म। ड्राफ्ट में लिखा है, तो उसमें ट्राई टू गो इनटू द aspects of rules and regulations, history, static evolution, technique, technology, personalities associated, initiatives for promotion, ये सब जरूर देख लेना, दैट विल बी important। एंड देन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन नेशनल इवेंट्स, इंडिया इन हम्म। इंटरनेशनल इवेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टेट इन नेशनल इवेंट्स, व्हाट else do you think can be done for the promotion of sports in general in India, ये सब जरूर देख जाना, दैट इज व्हाट विल बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन। ठीक यस। है। उसके बाद फिर आपने अपने डैश में ये भी मेंशन कर रहा है कि यू मेंशन सिल्वर मेडल कॉलेज बैडमिंटन टूर्नामेंट, रनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट, फिर बैडमिंटन, फिर टीम लीड, सस्टेनेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये काफी प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये हम्म। दैट इज द टॉपिक दैट रिलेट्स टू सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज द टॉपिक दैट रिलेट्स टू राजस्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिखा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन। हम्म। ठीक है। इन यस सर। what else you want to talk about? सर मोस्टली इट्स डन। ठीक है, चलो देन गुड लक, टेक केयर। Do थैंक make यू sure वेरी that मच you सर। send me the keywords of your DAF. ठीक है, सर टू यू और टू राज सर? to me. I will go ओके। through your DAF later on. I will add to that list of keywords if anything has been missed, and then I will ओके। send that to Raj Malhotra's IS Academy. They will develop a question bank. ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। my pleasure. Good luck. Take care.